بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت بلال بن رباح حبشی دار اللہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ محدث حاکم اور حافظ ابو نعیم نے ان کو اصحاب صفا میں بھی شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے موضوع رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے، اس حالت میں اسلام قبول کیا اور مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر سخت ترین سزائیں دیں، جن کا تذکرہ ہم ابھی کریں گے۔ ان کے دکھ اور مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے چار ہیں۔ میں عرب میں سے سبقت کرنے والا ہوں، اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اور باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بے شک رات میں یا دن میں جب کبھی بھی میں نے وضو کیا تو اس سے اپنے مقدر کی کچھ نہ کچھ نفل نماز تحیہ الوضو ضرور پڑھی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بذات صف الصفوہ، اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا۔ دوسری روایت میں ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبریل اس سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعہ کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تو خوشی کی وجہ سے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا عتق سیدنا یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں۔ انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ حلیہ الاولی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا، سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعہ محفوظ رکھا، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اس طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زرہیں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی ذرا گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دھوکہ کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر الٹا کر سینہ پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا، اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لات و عربی کو پوجنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इस काफिर का सिर्फ ये एक जवाब देते जाते थे कि अहदुन अहदुन यानी मबूद बरहक एक ही है, इसे छोड़कर लात वाओ गरीबी को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के इस बुलंद हिम्मत बंदा को सिर्फ यही नहीं कि तपती जमीन पर लिटा कर पत्थर की उनको चट्टान से दबा दिया जाता था, बल्कि इसके साथ साथ ये भी किया जाता था कि मक्का के शरीर लड़कों के हवाला कर दिया जाता था, जो उनकी गर्दन में रस्सी डालकर चक्कर देते फिरते थे। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वही रट लगाए जाते थे कि मबूद बरहक एक ही है। दिन भर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को सताया जाता और तपती जमीन में लिटाकर ऊपर से उन पर पत्थर रखकर बुरा हाल कर दिया जाता था, और फिर रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते थे, और अगले दिन फिर गर्म जमीन पर लिटाकर इस आशिक मूली के बदन के जख्मों को और ज्यादा जख्मी किया जाता था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को सजा देने के लिए कई शख्स थे। एक थक जाता था तो दूसरा सजा देने लगता था। कभी अब्बू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का, और कभी उनके सिवा दूसरे लोग सजा देने लगते थे, और हर शख्स उनको इतनी सजा देता था कि अपना जोर खत्म कर देता था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये तकलीफ देखी ना जाती थी। एक रोज जबकि उमैया बिन खलफ और उसके साथी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को मार पीट रहे थे, इस तरफ को हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा का गुजर हवा और इन्होंने उमैया बिन खलफ से कहा, तुझे खुदा का खौफ नहीं आता? इस मिस्कीन के साथ कब तक ये सितम ढाता रहेगा? ये सुनकर उमैया बिन खलफ ने कहा, तूने ही इसको बगाड़, अलजा अब तो ही उसे छुड़ा दे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ मैं उनको छुड़ा लूंगा। मेरे पास एक सियाह फाम गुलाम है जो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी है और तेरे दीन शरक पर जमा हुआ है, इसे उनके बदला दे दूंगा। उमैया बिन खलफ ने कहा, मुझे मंजूर है। लिहाजा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस गुलाम के बदले हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को खरीद कर आज़ाद कर दिया, और हिजरत से पहले इन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा के 100 गुलाम और खरीद कर आज़ाद किए जो इस्लाम कबूल करने पर मारे पेटे जाते थे। ऐसा मालूम होता है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस औरत के गुलाम थे उसने उनका मामला उमैया बिन खलफ के सुपरिद कर रखा था। इसने वकील बनकर इस औरत की तरफ से मामला कर लिया। हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को दीन इस्लाम की दावत दी और तवहीद खदांदी की तरफ बुलाया तो मक्का वाले आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको और आपके मानने वालों को सताने लगे। नाचार वाव मजबूर होकर हजरत सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने आपकी अन्हा ने फरमाया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से सबसे पहले हमारे पास मदीना मुनव्वरा मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा और इब्न उत्तम मकतूम रजी अल्लाह ताला अन्हा पहुँचे। वो दोनों कुरान शरीफ पढ़ाया करते थे। कुछ दिन के बाद अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हा और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा और साद रजी अल्लाह ताला अन्हा आए थे। फिर उनके बाद में सहाबियों में शामिल होकर उमर बिन खिताब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हा आए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इजाज़त से मदीना मुनव्वरा को हिजरत शुरू कर दी। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला मदीना शरीफ का नाम पहले यसरब था और इसमें वबा बहुत रहती थी। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे तो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुखार आ गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ये माजरा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, जैसे हमको मक्का महबूब था ऐसे ही हमको मदीना महबूब बना दे, बल्कि इससे भी ज्यादा हमको मदीना की मोहब्बत दे। ऐ अल्लाह, इसकी आबवा सेहत व तंदुरुस्ती वाली बना दे और इसके मद और सा में हमारे लिए बरकत दे। मद और सा पैमानों के नाम थे और इसके बुखार को यहाँ से उठाकर हजफा में मुंतकिल फरमा दे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हजरत सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में मुवाक़ात कायम फरमा दी थी, यानी दो आदमियों को आपस में एक दूसरे का खुसूसी गमगसार और हमदर्द व खैर ख्वाह बना दिया था। यूं तो सभी आपस में देनी भाई थे और एक दूसरे के शरीक गम और हमदर्द थे, लेकिन उस वक्त के तकाज़े कुछ ऐसे ही थे कि दो आदमियों में खुसूसी ताल्लुक़ कायम करके खुसूसी हमदर्दी का राब्ता पैदा करना ज़रूरी था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबीदा बिन अल-हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बना दिया था, और बाज़ अहल सैर का कहना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा का भाई हजरत अबू रदीना खुशमी रजी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया था। गज़वा बदर में शिरकत और उमैया बिन खलफ का कत्ल। मक्का मुज़म्मा से जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हम ने मदीना शरीफ को हिजरत की तो हिजरत के अगले साल जंग बदर का वाक़या पेश आया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उस जंग में दीगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हम की तरह शिरकत फरमाई। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन थे और जिन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाल कर दम लिया था, और हजरत बिलाल व अम्मार व खुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हम पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए थे, उस जंग में मारे गए। अबू जहल और उमैया बिन खलफ जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त सजा दिया करते थे, दोनों जहन्नम रसीद हुए। असद अल-गाबा में लिखा है उमैया बिन खलफ को जंग बदर में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कत्ल किया। इस्तियाब में लिखा है कि उमैया बिन खलफ कत्ल हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को खिताब करके फरमाया, मुबारक हुआ है बिलाल, अल्लाह तुम्हें और खैर इनायत फरमा दे, तुमने अपना इंतकाम ले लिया। उमैया बिन खलफ को डर था कि मैं कहीं कत्ल ना हो जाऊं, जिसकी वजह खास ये थी कि हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको खबर दी थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो तुझे बुवासता या बल्ला वसता कत्ल करेंगे। ये बात उमैया बिन खलफ ने गिरा बांध ली और जंग में शरीक होने से बचने की कोशिश की, मगर अबू जहल इसको इसरार करके ले गया और आखिर दोनों अपनी शकावत और बदबख्ती के अंजाम को पहुंचे। खुदा की शान, एक दिन वो था कि मक्का वाले मुट्ठी भर बेबस मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाते थे, और एक दिन वो भी आ गया जबकि उनके पेटने वालों के हाथों से कफर के सरगने और इस्लाम व मुसलमानों को मिटाने के इरादे रखने वाले कत्ल हुए। हक के चमकाने की कोशिश करने वालों की जीत हुई और बातिल वालों की कोशिशें फेल हो गईं। फिर एक दिन वो भी आया कि मुसलमानों ने मक्का फतह किया और जिस शहर को इसलिए छोड़ गए थे कि वहाँ उनके लिए पनाह न थी, इस शहर पर काबिज हुए और बालाखिर इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन इस्लाम के हल्का बेगोश हुए। अल्लाह ताला हक पर जमने वालों की मदद फरमाते हैं। सबर व इस्तिकामत, हिम्मत, कुर्बानी, ताल्लुक़ में अल्लाह होना चाहे। अजान की इब्तिदा और हजरत बिलाल का मौज़न मुकर्रर होना। दो चश्मे में अजान शुरू हुई और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा मौज़न मुकर्रर हुए और सफ़र व हज़र में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा मौज़न रहे। अजान शुरू होने का मुफस्सल वाक़या यह है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुआ कि सबको जमात की नमाज के लिए बुलाने की कोई तदबीर की जाए। लहजा इस सिलसिला में सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हम से मशवरा फरमाया और मुख्तलिफ तजवीज़ें पेश की गईं, जिनमें से एक ये राय पेश हुई कि नमाज के वक्त एक बहुत ऊंचा झंडा कर दिया जाया करे, जिसे देखकर लोग आपस में एक दूसरे को मस्जिद में बल्ला लिया करें और इस तरह सब जुमा हो जाया करें। लेकिन ये तजवीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न आई। दूसरी तजवीज़ ये पेश हुई, शबूर बजा दिया जाया करे, जो सींग से बना हुआ बगल की तरह होता है और जिसे यहूदी बजाकर आपस में न बजाकर आपस में अपने गिरजों में जुमा होते हैं। लेकिन ये राय भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद न फरमाई। इरशाद फरमाया कि ये तो यहूदियों की चीज़ है। तीसरी तजवीज़ ये पेश की गई कि दो लकड़ियाँ रख ली जाएं, जिनको नमाज के वक्त एक दूसरी में मारा जाए और इसकी आवाज़ से सब जुमा हो जाया करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद न फरमाया और पहली तजवीज़ पर जो इश्काल फरमाया था वही इस पर फरमाया और इरशाद हवा के ये तो ईसाइयों की चीज़ है। तमाम सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हम उसी फिक्र में थे कि कुछ बात तय हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अबद रिबा थे। वो मजलिस बर्खास्त होने पर मस्जिद में सो गए और उनको अजान के कलमात ख्वाब में सिखाए गए। सुबह हुई तो बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मैं कुछ सोता और कुछ जागता हुआ था। अचानक किया देखता हूँ कि एक शख्स आया जो दो सब्ज कपड़े पहने हुए है। इसने क़िबला रोखड़े होकर ये अल्फाज जोर जोर से पुकार कर पढ़ दिए। इसके बाद रावी ने अजान का अल्फाज कर किए इन अल्फाज को पुकार कर पढ़ा और इसके बाद थोड़ी देर बैठकर दोबारा उन्हीं अल्फाज को पढ़ा और क़द क़ामत अलसलूत का इजाफा कर दिया। मुझे अपना ये ख्वाब खूब अच्छी तरह याद है। लोगों की समझ में ना आएगा और अधहरा अधहर की बातें करने लगेंगे, वरना मैं ये कहने को तैयार हूँ
कि मैंने ये माजरा सोते में नहीं बल्कि जागते में देखा है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आराक अल्लाह खैरा, अल्लाह ने तुमको अच्छा ख्वाब दिखाया है। दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया अनहा लरुया हक अनशा अल्लाह, ये ख्वाब हक है। इसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और जो अल्फाज तुमको ख्वाब में बताए गए बिलाल को बताते जाओ, वो पुकार पुकार कर कहते जाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बुलंद है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खड़ा हो गया और उनको अजान के कलमात बताता रहा जो ख्वाब में सुने थे, और वो ज़ोर ज़ोर से बावाज़ बुलंद उनको पढ़ते रहे। जब अजान की आवाज़ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनी तो अपने घर से निकलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और ऐसी जल्दी में आए कि चादर भी ना संभाल सके। चादर घसीटते हुए अगर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, कसम इस जात की जिसने आपको हक बजा है, मैंने भी बैना वही ख्वाब देखा है जो देकर भेजा है। अबद अल्लाह बिन ज़ैद को दिखाया गया है। ये सुनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल्लाह अलहमद फिजालक, इस्बत अल्लाह के लिए तमाम तारीफ है कि उसने हमारे मशवरों से बेहतर तरीका बता दिया और तुम्हारे ख्वाब से ये बात और पक्की हो गई कि अब्दुल्ला का ख्वाब हक है। अंसार का ख्याल था कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद उस वक्त बीमार थे, अगर वो बीमार ना होते तो रसूल अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को मौज़न मुकर्रर फरमाते। उस वक्त का ज़ाहिरी सबब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीमारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से हज़रत ज़रत अब्दुल्ला के बजाय हज़रत अंसार के ख्याल के मुताबिक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौज़न मुकर्रर हुए। लेकिन एक बात ये भी समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सैयद अल-मुज़नीन और अपने नबी सीदना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़न इस उहुद की पुकार अलिफ पुकार के सिला में बनाया, जिसे वो पथरीली गर्म ज़मीन पर चट्टान के नीचे दबे हुए और कोड़े खाते हुए महबूब हकीकी की मोहब्बत के नशा में लटा करते थे। ये उदा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही को नसीब हुआ, जिसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हसरत के करम तौर पर फरमाया करते थे, मैं पछताता हूँ कि काश रसूल अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करके हुस्न वाओ हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मौज़न मुकर्रर करा देता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। मदीना मुनव्वरा में आपके मौज़न रहते और सफ़र में भी आपके साथ जाने और नमाज का वक्त आने पर अजान पढ़ते थे। बहुत कम कभी ऐसा हवा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ फरमा हूं और नमाज के वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा और किसी ने अजान दी हो। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा में तशरीफ़ ले जाते थे तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ होते थे और नमाज के वक्त अजान पढ़ देते थे, जिससे वहाँ के आसपास के रहने वालों को पता चल जाता था कि आज इस मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। एक मर्तबा आप मस्जिद क़बा में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ न थे, लिहाजा हज़रत साद अल-कुर्स ने अजान दे दी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मेरे साथ बिलाल को ना देखो तो अजान दी दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इन्होंने 3 बार करो अजान दी। एक मर्तबा हज़रत ज़ियाद बिन अल-हारिस अल-सदाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से फजर की अजान पढ़ी। कालबा उस वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं क़ज़ाए हाजत वगैरह के लिए तशरीफ़ ले गए होंगे। जब नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हसब दस्तूर जैसा कि हमेशा अपनी अजान के बाद उक़ामत कहा करते थे, इस मर्तबा भी उक़ामत कहने का इरादा किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्ला शुबह सदा के कबीला वाले हारिस ने अजान पढ़ी है और जो अजान पढ़े वही उक़ामत कहे। फजर की अजान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनी अंजार की एक औरत के घर पर चढ़ कर दिया करते थे, जो मस्जिद से बिल्कुल मिला हुआ था। सहरी के वक्त से आकर इसकी छत पर बैठ जाया करते थे और वक्त का इंतजार करते रहते। जब वक्त हो जाता था तो बदन में चुस्ती लाने के लिए अंगराई लेते थे और ये दुआ मांग कर अजान देते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ करता हूँ और चाहूँ कि तो इस बात का मुयन बन जाए कि कुरैश तेरे दीन को कायम करें। इसकी रिवायत करने वाली औरत जिनके घर की छत पर अजान दिया करते थे फरमाती हैं, किसी रोज़ भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
ने ये दुआ नहीं छोड़ी। अबू दाऊद। एक मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जब तुम अज़ान पढ़ो तो ठहर ठहर कर पढ़ा करो, और जब हुकामत कहो तो जल्दी जल्दी कहा करो, और अपनी अज़ान और हुकामत के दरमियान इतना फासिला रखो कि खाने वाला खाने से और पीने वाला पीने से और क़ज़ाए हाजत करने वाला क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाए। और ये भी फरमाया कि जब तक मुझे हुजरा से आता हुआ ना देख लो खड़े मत हुआ करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी हिदायत फरमाई कि अज़ान पढ़ते वक्त अपनी शहादत की उंगलियां कानों में दे लिया करो, इससे आवाज़ बुलंद तर होगी। एक बात ये मशहूर हो गई है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़ान में आशुहदो की जगह आशुहदो छोटे सीन से कहते थे, बात गलत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़ान देकर नमाज के लिए बुलाने के दाई थे, और दूसरे मौक़ों में भी जब ज़रूरत पड़ती तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दीगर उमूर का ऐलान भी फरमाते थे। जिहाद के मौका पर जब दुश्मन हार जाते और दुश्मनों का माल गनीमत बन जाता तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ड्यूटी थी कि लश्कर में ज़ोर से पुकार कर आवाज़ देते थे कि जो माल जिसके हाथ लगा हो ले आए। चुनांचे सब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम सारा माल हाजिर कर देते थे, जिसमें से हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवां निकाल लेते थे और इसके बाद बाकी माल को तकसीम फरमा देते थे। कुरान शरीफ के 10वें पारे के शुरू में है कि जान लो जो कुछ तुम को माल गनीमत किसी चीज़ से मिले, इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबत वालों के लिए और मसकीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए है। ये 5वां हिस्सा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत से निकाल कर इन मौक़े में खर्च फरमाया करते थे जिनका जिक्र ऊपर हवा, और बाकी 4 हिस्सों को मुजाहिदीन पर तकसीम फरमा दिया करते थे। हनफिया के नज़दीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 5वें हिस्सा के 5 मसरफ़ों में से सिर्फ 3 मसरफ़ बाकी हैं, यानी ये 5वां हिस्सा बस मुसाफिरों, मुहताजों और यतीमों पर खर्च हो सकता है। एक रोज़ ऐसे मौका पर यह वाक़या पेश आया कि एक साहब मनादी हो जाने के बाद बालों से बनी हुई एक लगाम लेकर आए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गनीमत के माल के है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया किया तुमने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मनादी 3 मरतबा सुनी थी? इन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ सुनी थी। फरमाया तुम उस वक्त लेकर क्यों ना आए? अब सबको माल तकसीम हो चुका। 5वां हिस्सा सारे माल से निकाल लिया गया। मुजाहिदीन इधर इधर चले गए। इसकी तकसीम क्यों कर हुआ ये सुनकर इन्होंने कुछ माजरत जाहिर की कि उस वक्त फलम मजबूरी के बायस ना ला सका था। आपने फरमाया मैं हरगज़ नहीं लूँगा, क़यामत के रोज़ उसे खुद ही लेकर आइयो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसलिए सख्त जवाब दिया कि हुकूक़ अल-इबाद का मामला बड़ा सख्त है। वक्फ़ ताम खुसूसन इन चीज़ों का मामला बहुत अहम है जो मुश्तरक या वक्फ़ की हैं, क्योंकि इसमें हक़ रखने वाले बहुत करने में ज़रा नहीं झिझकते हैं। ऐसे लोग इस हदीस पर खुसूसियत से गौर करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि हम इन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसूद अलिफ साथ इन जुज़वा हुनैन में शरीक हुए। इस ग़ज़वा में एक ये वाक़या पेश आया कि एक शख्स के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोज़खी है। जब लड़ाई का मौका आया और दुश्मनों से मुठभेड़ हुई, उस शख्स ने जंग में खूब ही हिस्सा लिया और इसके जिस्म में काफ़ी ज़ख्म आ गए। यूँ एक साहब ने इसका ये हाल देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जिसके बारे में आपने दोज़खी होने की खबर दी उसने अल्लाह की राह में खूब ही जंग लड़ी है और उसके जिस्म में बहुत ही ज़ख्म आ गए हैं। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बड़े यकीन के साथ वही फरमाया कि खबरदार वो दोज़खी है। उस शख्स की बहादुरी के जौहर देखकर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुकर्रर सुन कर के वो दोज़खी से करीब था कि बाज़ लोग इरशाद नबी के बीच होने में शक करने लगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भला क्यों कर सच ना होती। आखिर वही हवा जो आपने फरमाया और वाक़या ये पेश आया कि उस शख्स को जब ज़ख्मों की तकलीफ ज़्यादा पहुंची तो उसने तरकश से तीर निकाल कर अपने हलका पर चलाकर खुदकुशी कर ली। ये देखकर हाज़रीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दौड़े आए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने
آپ की बात कच्ची कर दी, उस शख्स ने खुद को ज़बह कर लिया। ये सुनते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए बिलाल, खड़े होकर ऐलान कर दो कि जन्नत में मोमिन के सिवा कोई दाखिल ना होगा, और ये भी ऐलान कर दो कि बल्ला शुबा इस दीन की ताईद व तक़वियत अल्लाह ताला बदकार आदमी के जरिया भी कर लेंगे। बायां कौसैन, अल्लाह अकबर किस कदर बरत अंगेज है। ये हकीकत के दीन की ताईद व तक़वियत बदकार आदमी के जरिया भी हो सकती है। वो हजरात जो किसी भी तरीक़ा से दीन का काम करते हैं, अपने ईमान व इखलास का जायज़ा लें और गौर करें कि कहीं बुरे आदमियों में तो हम नहीं हैं। ये समझना कि चूंकि हमारी किताबों से बहुत दीन की इशाअत हो रही है, या हमारी तबलीग और हमारे सिलसिला इरशाद से बहुत फैज़ पहुँच रहा है, इसलिए मकबूल बारगाह इन्हीं में और बख्शे बख्शाए काबिल ने है। हमा वक्त ख़तरा पेश नज़र रहना चाहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि एक साहब देहात के रहने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही देते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ। दोबारा आपने सवाल फरमाया किया, ये भी गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, मनादी कर दो लोग सुबह को रोज़ा रखें। मुश्कोत शरीफ किताब अलसूम। सीन हदीस पाक से साफ जाहिर है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही देने वाले साहब के मोमिन होने का पता चला लिया, तब चाँद होने का फतवा सादिर फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म फरमाया कि कल से रोज़ा रखने ऐलान कर दें। उमूमन हर साल ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं कि रेडियो और तार की खबरों पर चाँद हो जाने का फतवा देने पर अवाम उलमा से इसरार करते हैं, और उलमा हक बगैर शहादत मईनी के जो शरा मुतबिर है फतवा देने से गुरेज करते हैं। इन हजरात की क़दामत और हक पर इस्तिकामत जिद्दत पसंद मज़मून निगारों और सुबह फ़ियूल को बहुत नागवार गुजरती है, और उलमा के खिलाफ मज़ामीन और अदारिये लिख मारते हैं। अवल तो ये बात हर्जी मकतल के लिए काबिल गौर है कि इस तरक्की के दूर में भी कोई गवाही कोर्ट और खरी में टेलीफोन तार और ख़त व रेडियो के जरिया मुतबिर नहीं है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, जब तक कोर्ट में हाजिर होकर गवाही ना देगा, हरगज़ उसकी गवाही मुतबिर ना होगी। फिर जबकि चाँद का सबूत शहादत पर मौकूफ़ है, तो उसके लिए मुफ्ती के सामने होकर गवाही देने को क्यों ज़रूरी करार नहीं देते। दूसरी बात यह है कि रेडियो से बोलने वाले और तार घर में तार रवाना करने की खिदमत अंजाम देने वाले का मुसलमान होना यकीनी नहीं होता, बल्कि अक्सर ममालिक में तो उसके गैर मुस्लिम होने का यकीन होता है। फिर इस पर क्यों कर फतवा दिया जाए? अगर चांदी की खबर और शहादत लाने वाले के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार देना बुरा जानते हो, तो मौलाना साहिबान इसको किया करें। वो तो रिसाल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल के पाबंद हैं। देख लो, आपने शाहिद के मुसलमान होने का यकीन फरमाने के बाद फतवा दिया। एक मर्तबा ऐसा वाक़या पेश आया कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सफ़र करते करते सुबह सादिक होने से पहले मक्का मुज़मा के करीब जंगल में पूरे काफिला के साथ क़याम फरमाया, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज फजर के वास्ते जगाने के लिए मुकर्रर फरमा दिया। खुदा का करना ऐसा हवा के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जगाने के भरोसा सब सो गए, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसा नींद का गलबा हवा के बल्ला इख्तियार मीठे मीठे उनकी भी आंख लग गई। जब सूरज निकल आया तो सब जाग उठे और नमाज फजर कज़ा हो जाने की वजह से घबराए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सवारियों पर सवार होकर यहाँ से चल पड़ो और इस जंगल को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ शैतान है जिसकी शरारत से हमारी नमाज कज़ा हुई। सब सवार होकर चल दिए, और जब इस जंगल से निकल कर आगे बढ़ गए तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि सवारियों से उतर कर वज़ू करो, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अजान देने या हुकामत कहने का हुक्म फरमाया, और नमाज फजर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा पढ़ाई। चूँकि हाज़िरीन नमाज कज़ा हो जाने की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर फरमाया कि ए लोगो, बेशक अल्लाह ने हमारी
रूहें अपने कब्जा में कर ली थी, और अगर वो चाहता उनको हमारी तरफ उस वक्त के अलावा इससे पहले या बाद वापस फरमाता। बस जब तुम में से कोई शख्स इस तरह होता रह जाने की नमाज का वक्त निकल जाए या नमाज की तरफ से भूल हो जाए और फिर नमाज जाते रहने की वजह से अदा करने की तरफ मुतबरहट वाली तवज्जो हो जाए जिसकी मोमिन से उम्मीद है, तो उसको उसी तरह पढ़ ले जैसा कि उसको उसके वक्त पर पढ़ता था। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि बेशक शैतान बिलाल के पास आ गया। वो खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। शैतान ने अपनी तदबीर से उनको लिटा दिया, फिर उनको थपकता रहा जैसे बच्चा को सलाने के लिए थपकी दी जाती है, यहाँ तक कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सो गए। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और उनसे हकीकत हाल मालूम करने के सिलसिला में गुफ्तगू हुई, तो इन्होंने वही बात बताई जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, यानी शैतान का सलाना और फीकी देते रहना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तो अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनने से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत हाल बतौर मुजिज़ा ज़ाहिर फरमा दी थी। इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसाख्ता अशहदो अंक नकल की है। अलिफ रसूलु अल्लाह बोल उठे। ये पूरी रिवायत मुश्कोत शरीफ में बहुला मौता मालिक है। अबू दाऊद शरीफ में इस वाक़या को मज़ीद तफसील के साथ नकल किया है और इसमें बाज़ बातें मौता की रिवायत से ज़्यादा हैं। इसमें यह भी नकल किया है कि सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए थे और आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल फरमाया कि ये क्या माजरा है। इन्होंने जवाब में अर्ज़ किया, अख़ज़ बनफ़्से अलज़े बनफ़्स किया रसूल अल्लाह बाबी अनत व अम्मी, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मेरी जान को इस ज़ात पाक ने अपने कब्ज़ा में कर लिया जिसने आपकी जान को कब्ज़ा में किया। मेरा ना जागना अपने इख्तियार से ना था। एक रिवायत में है कि हज़रात सहाबा घबरा कर आपस में एक दूसरे से कहा कि नमाज के बारे में हमसे कसूर हो गया। उनकी बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन जानू सोए रह जाने में कसूर नहीं है, कसूर जागते ही में है। जब तुम में से कोई नमाज का अदा करना भूल जाए या सोते में नमाज रह जाए तो जिस वक्त आया आए इस नमाज को पढ़ ले। इस किस्सा से ये बहुत से मसाइल व फ़वाइद मालूम हुए। नमाज के लिए जागने का एहतिमाम करके सोना चाहे, किसी को जगाने के लिए मुकर्रर करके या जिस तरह मौका हो। जब नमाज का वक्त निकल जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त की नमाज क़ज़ा हुई हो दूसरे रोज़ या इसके बाद ख़ास उसी वक्त में, मसलन फजर में पढ़े, बल्कि क़ज़ा नमाज का वही वक्त है जिस वक्त आयात आ जाए और पढ़ने का इरादा कर ले, बशरती का उस वक्त सूरज छिपता और निकलता न हो और ज़वाल का वक्त ना। चंद आदमियों की नमाज क़ज़ा हो गई तो उसको भी जमात से पढ़ना चाहे और इसके लिए अज़ान व इक़ामत भी है। तफसील इस मसला की फ़िक़्ह की बड़ी किताबों में है। नमाज क़ज़ा होना मामूली बात नहीं है। एक मोमिन की शान ये है कि जब नमाज क़ज़ा हो जाए तो इसको बड़ी परेशानी और खबरहत लाहक हो जाना चाहते। ऐसा कह हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम घबरा गए और जबकि बल्ला इख्तियार हुए रोजाने पर खासान खुदा असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा उठे तो कसदा जो नमाज तर्क कर दे। इसकी परेशानी और पेशमानी और घबराहट तो बे इंतहा हुई चाहे। अनहला तफरीद फ़ी अलनुम अनमाल तफरीद फ़ी अल-रिज़्क़। हज़रत के खर्चा की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के मौज़िन भी थे और आपके खाजुन भी। कोई ज़रूरतमंद इन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म फरमा देते थे। वो किसी न किसी तरह कहीं से ले देकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसकी ज़रूरत पूरी कर ही देते थे। अब्दुल्ला अल-हुज़नी कहते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खर्चा कैसे चलता था। इन्होंने फरमाया कि जब से आपको अल्लाह ने नबूवत दी इस वक्त से लेकर आपकी वफ़ात तक खर्चा करने की खिदमत मेरे ही सुपरद थी। ये खर्चा ज़रूरतमंदों से मुतालिक था। जो लोग बाहर से आते या और कोई साइल आप पहुँचता तो इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे हुक्म होता था। जब कोई मुसलमान आपके पास आता जिसके पास कपड़ा ना होता था तो आप मुझे हुक्म फरमाते थे। मैं कर्ज लेकर चादर खरीद कर इसको पहना देता था। उसी इंतज़ाम के सिलसिला में एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
पास खजूरों का एक ढेर जुमा हो गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल ये क्या है? अर्ज किया, ये ने आपके लिए और आपके मेहमानों के लिए जुमा किया है। आपने फरमाया, क्या तुम इससे नहीं डरते कि इसके जुमा करने की वजह से तुम्हें दोज़ख का धुआं पहुंचे? फिर फरमाया, इनफिक बलाला वला तखश मंज़िल शक्लाला, अने हलाल खर्च किए जाओ और अरश वाले की तरफ से कम हो जाने का खौफ मत करो। एक मर्तबा आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये भी फरमाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मशरिक से मेरी मुलाकात हुई। इसने कहा कि मुझे वुसअत और सरवत हासिल है, तुम ऐसा करो कि जब ज़रूरत दरपेश हो मुझ ही से कर्ज लिया करो, किसी दूसरे से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, इससे बेहतर किया होगा। गर्ज मैंने इससे कर्ज लेना शुरू कर दिया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी होता तो इससे कर्ज ले आता और इरशाद आली की तमील कर दिया। एक मर्तबा वज़ू करके मैं अजान पढ़ने के लिए ही खड़ा हुआ था कि वही मशरिक चंद आदमियों के साथ आया और मुझसे खिताब करके उसने कहा कि महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं? मैंने कहा, ख़त्म के करीब है। कहने लगा कि 4 रोज़ बाकी हैं। अगर महीना के ख़त्म तक मेरा कर्ज अदा न किया तो मुझे अपने कर्जा के एवज गुलाम बना लूँगा और इस तरह तो बकरियां चराता फिरेगा जैसा कि पहले थे। ये कहकर वो चला गया। इसकी बात सुनकर मुझे दिन भर बड़ा सदमा रहा, हत्ता कि रात को तन्हाई में नमाज इशा के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये माजरा है और हाल ये है कि ना आपके पास उस वक्त इसका कर्ज अदा करने का फौरी इंतज़ाम है, ना मैं खड़े खड़े कोई इंतज़ाम कर सकता हूँ, और मशरिक जलील करेगा और इंतज़ाम ना होने की वजह से इसकी बातें सुनना होंगी और जिल्लत बर्दाश्त करना होगी। इसलिए गुजारिश है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं रोपोश हो जाऊं। जब आपके पास कहीं से कुछ आ जाएगा और उसके कर्ज की अदायगी का इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। बारगावर साल में ये गुजारिश की और घर आ गया। सफ़र के इरादा से तलवार ली, ढाल उठाई, जूता लिया और सुबह का मुंतज़िर रहा। ये तय कर लिया कि सुबह के करीब नहीं चला जाऊंगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े आए और कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 औंटनियां जिन पर सामान लदा हुआ है मैथी हुई हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुमको खुशी की बात सुनाऊं, अल्लाह जल शाना ने तुम्हारे कर्जा की बेबाकी का इंतज़ाम फरमा दिया। फदक के रईस ने ये हदिया मुझको भेजा है। ये औंटनियां और सारा सामान जो उन पर लदा हुआ है ले जाओ और कर्ज अदा कर दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह जल शाना का शुक्र अदा किया और इन औंटनियों को मौन के सामान के खुशी से लिया और समारा कर्जा अदा करके वापस आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक मस्जिद ही में इंतज़ार फरमाते रहे। मैंने वापस अगर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपको सारे कर्जा से सबतोश फरमा दिया और अब ज़रा सा कर्ज भी बाकी नहीं रहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किया इस सामान में से कुछ बाकी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ कुछ बाकी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको भी तकसीम कर दो ताकि मुझे राहत हो। मैं इस वक्त तक घर में नहीं जाऊंगा जब तक ये तकसीम ना हो जाए। वो तमाम दिन गुजर गया और इशा की नमाज से फारिग हुए के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया कि वो बाकी माल तकसीम हो गया या नहीं। मैंने अर्ज़ किया, छे मौजूद है, ज़रूरतमंद ना आए इसलिए ख़त्म ना हो सका। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को मस्जिद ही में आराम फरमाया और घरों में तशरीफ़ ना ले गए। दूसरे रोज़ इशा के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया कि इस माल में से कुछ बाकी है, यह सब ख़त्म हो गया। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल शाना ने आपको राहत इनायत फरमाई, वो सब ख़त्म हो गया। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घबराहट से घरों में तशरीफ़ ना ले गए कि कहीं ऐसे हाल में दुनिया से रवाई का वक्त आ जाए कि थोड़ा बहुत माल अपनी मुल्क हो। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इत्तला दी कि वो सब माल ख़त्म हो गया तो आप घरों में अंदर तशरीफ़ ले गए और बीवियों से मुलाकात फरमाई। हिकायात सहाबा, मिस्र मेरा भूख बर्दाश्त करना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाजुन और मुसाहिब खास थे, उसी वजह से उनको भी आपके साथ तकलीफ़ों में मुब्तला रहना पड़ता था।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बिलाशुबा मैं अल्लाह के बारे में इतना डराया गया हूँ कि किसी को ऐसा ना डराया जाएगा, और हकीका मुझे अल्लाह के बारे में इस कदर ऐज़ा दी गई है कि किसी को इस कदर ऐज़ा ना दी जाएगी। और ये वाक़या है कि मुझ पर 30 दिन रात ऐसे गुज़रे हैं कि मेरे और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खाने के लिए जानदार की खुराक में से सिर्फ इतनी चीज़ थी जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बगल में छपी हुई थी। तिरमिज़ी शरीफ। यानी पूरा एक माह मैंने और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतनी किसी चीज़ खाकर गुजारा किया जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बगल में छपी हुई थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर बाश थे। सफ़र वाओ हज़र में आपके साथ रहते थे, तमाम जिहादों में आपके साथ शरीक रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इत्तिबा सुन्नत में बहुत आगे थे, और उसी जज्बा की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा और हर कौल वाओ फ़ेल को मालूम करने और महफूज रखने की ख़ास कोशिश करते थे। मगर बाज़ मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे भी सबक़त ले गए, और वर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने मौजूद ना होने पर रंज हुआ। और चूंकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौका पर मौजूद थे, इसलिए असल वाक़या से दरियाफ़्त किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए। मुझसे गफलत हो गई कि उस वक्त मौजूद ना होने की वजह से आपके साथ दाखिल ना हो सका। जैसे ही मुझे खबर लगी, जल्दी से काबा शरीफ के दरवाज़ा की तरफ चला। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई तो उनसे दरियाफ़्त किया कि काबा के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह शरीफ में दाखिल हुए, और आपके के साथ फजल बिन अब्बास और उसामा बिन जैद और उस्मान बिन तलहा और बिलाल अल्लाह ताला अन्हम दाखिल हुए। आपने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म फरमाया कि कोर बंद कर लो। फिर जितनी देर अल्लाह ने चाहा आप काबा शरीफ के अंदर रहे, फिर आप बाहर तशरीफ़ ले आए। मुझे कैफियत मालूम करना थी। सबसे पहले बिलाल रज़ी अल्लाह से मुलाकात हुई। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी। इन्होंने बताया कि यहाँ इस जगह दोनों सतूनों के दरमियान पढ़ी। हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से किसी ने सवाल किया, क्या आप हज़रत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के मौका पर हाजिर हुए हैं? इन्होंने फरमाया, हाँ, हाजिर हुआ हूँ। एक मर्तबा का वाक़या यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए। इसके बाद लोगों के साथ नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया, फिर औरतों के पास तशरीफ़ ले गए और उनको सहते फरमाए, अल्लाह ताला के अहकाम याद दिलाए और उनको सदका का हुक्म फरमाया। इसका औरतों पर यह असर हुआ कि मैंने देखा अपने हाथों से कानों और गलों के जेवर उतार कर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देती जा रही हैं। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अपने दौलत कदा पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के मौका पर हाजिर हुआ। आपने बग़ैर अज़ान और इक़ामत के नमाज शुरू फरमा दी। फिर जब नमाज से फारिग हो गए तो खुतबा देने के लिए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बराबर खड़ा करके और उन पर टेक लगा खड़े हो गए और अल्लाह की हम्द व सना के बाद वज़फ़ फरमाया और खुदावंद ताला के अहकाम लोगों को याद दिलाए और अल्लाह ताला की फरमानबरदारी पर अभारा। और उसके बाद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लिए हुए औरतों के करीब तशरीफ़ ले गए और औरतों को अल्लाह ताला से डरने के हुक्म फरमाया और उनको नसीहतें फरमाएं और अल्लाह ताला के अहकाम याद दिलाए। एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। ये सुबह का वक्त था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे थे। आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाने में शरीक हो जाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं रोज़ादार हूँ। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपना रिज़्क़ खा रहे हैं और बिलाल का रिज़्क़ जन्नत में महफूज है। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि बिलाल, क्या तुमको मालूम है कि रोज़ादार की हड्डियाँ तस्बीह में मशगूल रहती हैं
और इसके लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं जब तक उसके पास कुछ खाया जाता रहे। एक मर्तबा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा अच्छी कस्म की बेहतरीन खजूरें लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि ये कहाँ से आई हैं। अर्ज किया, मेरे पास खराब खजूरें थीं, मैंने उन खराब खजूरों के 2 सा के बदले ये अच्छी खजूरें 1 सा खरीद ली हैं। ये सुनते ही आपने इरशाद फरमाया, औफा, ये तुमने किया, ये तो सरासर सूद है, ऐसा ना किया करो। जब ऐसा करना हो तो इसकी सूरत ये करो कि खराब वाली खजूरों को खजूरों के अलावा किसी दूसरी चीज के बदले बेच डालो, फिर जो चीज तुमने अपनी खजूरों की कीमत में ली है इसको कीमता देकर वो अच्छी वाली खजूरें खरीद लो। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि अमूल रबूया में एक ही जिन्स की चीज को आपस में बराबर सराबर के मामला पर बेचना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ऐसा करना सूद है। अगरचे एक तरफ वही चीज रदी हो और दूसरी तरफ अच्छी हो, अगर ऐसा करना हो तो उसकी सूरत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद से बचने की ये इरशाद फरमाई कि एक तरफ जो जिन्स है उसको पहले किसी दूसरी चीज के बदले ख्वाह रुपया हो या कोई दूसरी चीज फरोख्त कर दो, फिर ऐसा करो कि जो चीज तुमने कीमत ली है उसके बदला इस चीज को खरीद लो जो अपनी फरोख्त करदा चीज की हम जिन्स है। इस तरकीब से दोनों तरफ जिन्स बदल जाएगी और सूद ना रहेगा। ये मसला फ़िक़्ह हनफी की किताबों में उसी तरह लिखा है और इसके मातहत बहुत सी जुज़ियात दर्ज की गई हैं। जिन लोगों को हदीस का पता नहीं, इस कस्म के मसाइल को देखकर फ़िक़्ह पर इतराज़ करके अपने आखिरत ख़राब करते हैं। जब मसला हदीस शरीफ से लिया गया है तो इतराज़ करना हदीस पर इतराज़ है, ना कि फ़िक़्ह पर। फ़ायदा किन किन जिन्सों को आपस में कम ज़्यादा करके फ़रोख्त करने पर सूद होता है, इसकी तफसील कुतुब फ़िक़्ह देखो उर्दू में, बहुत कुतुब फ़िक़्ह देखो उर्दू में। बिहिश्ती ज़ेवर हिस्सा पंजुम में मुताला किया जाए। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदका का एक मसला दरियाफ्त करने के लिए घर से चलें। जब वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ा पर पहुँची तो वहाँ एक अंसारी औरत से मुलाकात हो गई। वो भी उसी ज़रूरत से आई थी जिस ज़रूरत से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ ले गई थीं, यानी दोनों को सदका का मसला मालूम करना था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत वाओ दिलों पर छाई हुई है, बेधड़क मसला दरियाफ्त करने की जुर्रत न हुई थी। हम दोनों औरतें अभी बाहर ही खड़ी थीं और सवाल पहुंचाने की सूरत सोच रही थीं कि अंदर से बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकल आए। हमने उनसे कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और अर्ज करो कि दरवाज़ा पर 2 औरतें हैं जो आपसे सवाल कर रही हैं कि क्या हम अपने शौहरों पर और अपनी परवरिश में जो यतीम बचे हैं इन पर अपने सदका का माल खर्च कर सकती हैं, और साथ ही ये भी कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मत बताना कि हम दोनों कौन हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि दरवाज़ा पर 2 औरतें ये मसला मालूम कर रही हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया कि वो दोनों कौन कौन हैं। अर्ज किया, अंसार की एक औरत है और ज़ैनब है। सवाल फरमाया, कौन सी ज़ैनब? अर्ज किया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहलिया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताते हुए इरशाद फरमाया कि शौहरों पर और अपने रिश्ता के यतीमों पर खर्च करने से दोहरा अजर मिलेगा, एक अपनों पर खर्च करने का, दूसरा खैरात करने का। मुश्कुत शरीफ किताब अल-ज़कात खबर ना देना कि हम कौन हैं, इसमें शायद ये मसलहत होगी कि खर्च करना चूँकि खुफिया तरीक़ा पर बेहतर है, इसलिए पता ना चले तो इखलास से ज़्यादा करीब और रियाकारी के इहतिमाल से ज़्यादा बैद होगा। चूँकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़हन में उनकी फरमाइश की मसलहत ज़्यादा अहमियत से ना आई थी और इन्होंने खबर ना देने का वादा भी ना फरमाया था, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल फरमाया कि सवाल करने वाली कौन है तो बता दिया। असद अल-गाबा में है कि जब हज़रत फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा बना दिए गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बल्ला शुबाह में ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अलैहि वसल्लम से सुना है कि मोमिन के
अमाल में सबसे अफजल अलिफ जिहाद फी सबील अल्लाह है और मैंने अब इरादा किया है कि मौत आने तक पूरी जिंदगी जिहाद में गुजार दूं। ये सुनकर हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तुमको अल्लाह की कसम दिलाता हूँ और मेरा हक और जो काबिल लिहाज मर्तबा है इसका वासिता देता हूँ कि तुम मेरे जैसे जी यहीं क़याम करो और अजान दो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा वक्त भी करीब आ चुका है। ये सुनकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा ही में क़याम पजीर हो गए। जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हो गई और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा हो गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा उन के पास आए और वही बात कही जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज की थी कि मैं अब बाकी जिंदगी जिहाद में गुजारना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी तरह जवाब दिया जिस तरह हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया था। उनको रोकना चाहा लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा राजी न हुए और मजीद क़याम करने से इनकार फरमा दिया और बारगाह खिलाफत में अर्ज किया कि मैं हजरत फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अजान देता रहा, फिर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में अजान देता रहा और उनके रोकने से रुक गया तक कि उनकी वफात हो गई और उनकी बात इसलिए मानना पड़ी कि वो मेरे मुहसिन खास मास थे। मैंने रसूल अकरम फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिहाद फी सबील अल्लाह से बढ़कर कोई अमल नहीं है। अब जिहाद में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। नाचार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा के लिए मुजाहिद होकर शाम चले गए। अपने ज़माना खिलाफत में एक मरतबा जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा शाम तशरीफ़ ले गए तो उनकी मौजूदगी में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अजान पढ़ी। रावी कहते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दिन ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके इस कदर रोए कि इस जैसा किसी दिन भी उनको रोता हुआ हमने नहीं देखा। इस्तियाब में लिखा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा को शाम जाने से रोकना चाहा तो इन्होंने अर्ज किया, अगर आपने मुझे अपने लिए आज़ाद किया है तो रोक ले जाए और अगर अल्लाह के लिए आज़ाद किया है तो छोड़ दे जाए। मैं अल्लाह की तरफ यानी उसके दीन के लिए जिहाद करने जाता हूँ। ये सुनकर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अच्छा जाओ। चुनांचे वो चले गए और ताहियात शाम ही में रहे। अलहासल इसमें सीरत लिखने वालों का इख्तिलाफ है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही शाम चले गए थे या हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा की फरमाइश पर उनकी मुद्दत खिलाफत गुजार कर तशरीफ ले गए। खशर ताला अन्हा के शाम के ज़माना क़याम में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी की थी, जिसका तज़किरा उसाबा में हाफिज बिन हजर ने इस तरह लिखा है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दिनी भाई अबू दीजा खुशमी रजी अल्लाह ताला साथ कबीला बनी खौलान में पहुँचे और उन लोगों से कहा कि हम दोनों अपने नकाह का पैगाम देने आए हैं। हम काफिर थे, अल्लाह जल शाना ने हमको हिदायत थी और इस्लाम से नवाजा। हम गुलाम थे, अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी की दौलत बख्शी। हम तंगदस्त थे, हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल नसीब फरमाया। अगर तुम लोग हम से निकाह कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर हमारा पैगाम रोक कर दवाओ तो ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। कबीला बनी खौलान के लोगों ने दोनों का निकाह कर दिया। शादी का जिक्र तो मिला लेकिन औलाद होने का पता न चला। साहब असद अलगाबा ने ये ज़रूर लिखा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मौत के वक्त कोई औलाद नहीं छोड़ी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाम में क़याम पजीर हो गए थे और इसको काफ़ी अरसा गुजर चुका था कि एक रोज़ ख्वाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा कि बिलाल ये क्या बेवफाई है, मदीना नहीं आते हो, क्या वो वक्त नहीं आया कि हमारे पास आओ। ख्वाब के बाद रंज की हालत में बेदार हुए और सवार होकर मदीना तैबा की राह ली और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर साहब मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के पास हाजिर होकर रोना शुरू कर दिया। इतने में औल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म वाव चराग हजरत हुस्न वाव हजरत हसीन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पहुंच गए। उनको देखकर चूमने और प्यार करने लगे। दोनों ने फरमाइश की कि फजर की अजान दें। जब इन्होंने अजान दी तो मदीना मुनव्वरा में जलजला की कैफियत महसूस होने लगी।
और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा की अजान सुन के हाजिरीन मदीना को ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गया, जिसकी वजह से रोने वाले ऐसे रोए कि किसी दिन मर्द व औरत इस कदर रोते नहीं देखे गए। ये वाक़या असद अल-गाबा में लिखा है, लेकिन मिला अली कारी ने मौज़ूअत कबीर में उसको मौज़ू यानी बनाया हुआ किस्सा बताया है। साहब आसार अलसन ने जल्द सानी के बिल्कुल ख़त्म पर इस किस्सा को नकल फरमाया है, और इसमें यह इजाफा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजान सुनकर लोगों ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ ले आए, और ये भी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना में किसी दिन इस कदर रोने वाले मर्द व औरत नहीं देखे जिस कदर उस रोज़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजान सुनकर रोए। साहब आसार अलसन ने इस किस्सा को इब्न साकर और असबकी से नकल किया है, और तक़ीउद्दीन अलसबकी का कौल नकल किया है। इसकी सनद जीद है। वालल्लाह ताला अलम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात 20 दो चश्मे में दमिश्क में हुई और वहीं बाब सगीर के पास मकबरा में दफन हुए। उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 63 साल की थी। इस हिसाब से बासत नबी के वक्त उनकी उम्र 30 साल होती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 33 साल इस्लाम की खिदमत में गुजारे। इस्लाम के लिए मार भी खाई, जिहाद गज़वत में भी बराबर शरीक रहे, भूख भी बर्दाश्त की। न सिर्फ मोज़न बल्कि सैयद अल-मुज़नीन के उदा अली पर फाइज हुए। रसाल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात के जिम्मेदार रहे। ऐसी तरह की वीडियो और वक़िया को देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।